Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड और एसपी का जो सब्जेक्ट है उसमें इशू ऑफ शेयर्स का जो मुद्दा है, पिछले 2 लेक्चर से जितना मैं याद करता हूँ ये चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। इसके पहले टाइप ऑफ शेयर्स, उसके जो फीचर्स है, सारा तामझाम हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल और दूसरा इशू ऑफ शेयर्स, ये हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स बोलने के लिए तो छोटा होता है बट काफ़ी लंबा टॉपिक है। उसके अंदर हम मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो पॉइंट ए है, देयर आर 4 ऑप्शंस ऑफ सेलिंग योर शेयर्स। ओके, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, कहाँ पर बेचोगे? आप किसी धार्मिक स्थान के बाहर बेच सकते हो, चर्च के बाहर, मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, आप स्टेशन पे बेच सकते हो, जहाँ पर मॉल के बाहर बेच सकते हो, डी मार्ट के बाहर बेच सकते हो, जहाँ पर गर्दी ज़्यादा रहती है। तो ये आपके ऑल्टरनेटिव्स है। उसी तरह जब आप शेयर्स बेचते हो, आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला था जब आप पब्लिक को बेचते हो। ओके, ये कब कवर अप किया गया था? ये पीछे जो नक्शा है was to explain to you classification of share capital. This was to explain to you कि कंपनी होती है और शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स अपना पैसा कंपनी में डालते हैं। आखिरकार वो पेड अप कैपिटल का साथ डील होता है। बाकी कैपिटल के अलग अलग नाम हैं। इन दिस हमने ए ऑप्शन सीख लिया, पब्लिक ऑफर, उसमें आईपीओ आता है, एफपीओ आता है। आज हम ध्यान रहे हैं कि अगर हम शेयर्स अपने ही लोगों को बेचते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? या तो आप राइट इशू कर सकते हो, राइट लेफ्ट का नहीं, राइट का मतलब साडा हक एथेरक, वो वाला राइट। या तो आप बोनस शेयर्स दे सकते हो, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में सारी चीजें जो मेंशन्ड है सारा कानून के हिसाब से है। ऐसा नहीं हो सकता मैं स्टीवन सर हूं, मंडे को मेरा ऐसा मूड था, मैंने ऐसे बोल दिया, ट्यूसडे को वो बदल गया। नहीं, मैं स्टीवन सर हूं या ना हूं, मंडे को मेरा मूड ये हो या वो हो, कानून कानून होता है। एन एक्ट इज एन एक्ट, सेक्शन इज अ सेक्शन, इट हैज टू बी फॉलोड whether you are Steven sir or not, whether it is Monday, Tuesday, Wednesday, Friday or January, February or 2021, 22, 23. So rule is rule, follow करना पड़ेगा।
देन व्हाट आर द रूल्स कंसर्निंग व्हेन यू सेल द शेयर्स टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। देखिए ये सबसे बेस्ट बात है, आईपीओ में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, शेयर्स बेच रहा हूं, कौन खरीदने आएगा, बराबर। बुक बिल्डिंग मेथड में कितने में खरीदेगा, मैंने मिनिमम मैक्सिमम प्राइस तो बता दिया, कितने लोग आने वाले हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन, सस्पेंस, यार बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। बट जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हो, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। अगर आप एक पुरानी कंपनी हो, करीबन 10, 15, 20, 30, 40 साल की कंपनी, ये शेयर होल्डर्स 99% आपके साथ थे, खुशी में गम में आपके साथ थे, तो आप में काफी कॉन्फिडेंस होता है। इन्हीं को मैं अगर शेयर्स बेचता हूं, मेरे नए वाले शेयर्स, तो जी ये खरीद लेगी। हाँ, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कौन से 2 तरीके में शेयर्स बेच सकते हो, एक का नाम है राइट्स इशू। अच्छा, मतलब ये ऑप्शन है बी, इसमें 2 ऑप्शन है। राइट्स इशू का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एग्जाम्पल 10 शेयर होल्डर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, एक्स वाई जेड, बराबर। मैं नए क्या लेकर आया हूं, शेयर्स लेकर आया हूं, बराबर। तो मैं नए कस्टमर्स को ढूंढने नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भी नया कस्टमर कहां मिलेगा, उसका नाम, पत्ता, टाइम, एड्रेस मिलने का मेरे को नहीं पता। मिस्टर ए के साथ मेरी पहचान है, हाय हेलो होता है, एक्स वाई जेड के साथ भी मेरा हाय हेलो होता है, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम सब होता है, अपने ही लोग हैं। मैं ये गर्मा गर्म शेयर्स, गर्मा गर्म इनके पास लेके जाता हूं, इनको ही पूछता हूं पहले कि आप खरीदोगे मेरे नए शेयर्स, क्या पता वो हां बोले। अगर वो हां बोले तो तकलीफ ही नहीं है, क्या, बिकॉज न्यू शेयर होल्डर्स ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, कौन, कहा, कितने में खरीदेगा, कितने खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, क्या भावतोल करना पड़ेगा, अरे कितनी तकलीफ, नया नाम, नया एड्रेस, कितनी तकलीफ। हाँ, आईपीओ एफपीओ में करते हो क्योंकि तभी ऑप्शन नहीं रहता, बट मैं पुरानी कंपनी हूं, मेरे पुराने शेयर होल्डर्स हैं, मैंने उन्हीं को पूछा क्या आपको शेयर्स चाहिए, क्योंकि आपका पहले हक बनता है। आपको ऊपर वर्ड दिखता है प्रीएम्प्टिव राइट। व्हाट इज प्रीएम्प्टिव राइट? भैया अगर मैंने कमा के प्रॉपर्टी बनाई है और मेरे प्रॉपर्टी पे पहला हक किसका है, मेरे बच्चों का है, पड़ोसी के बच्चों का नहीं है, दुश्मनों का नहीं है, पहले मेरे बच्चे, मैं उनको बोलूंगा या उनको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। उसी तरह पहले मेरे शेयर होल्डर्स, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मैं उनको पूछूंगा, उनका पहला हक बनता है, उसको कहते हैं राइट, साडा हक एथे रख। हाँ, तो मैं सबसे पहले उनको पूछूंगा डू यू वांट इट, इफ यू वांट द शेयर्स आई गिव इट टू यू, आई गिव इट टू यू एट अ चीपर प्राइस, तू मेरा आदमी है। ओके, कुछ समय पहले मुझे मेरे सुपुत्र के लिए, फॉर माई सन, साइकिल खरीदना था, उनका जन्मदिन था, तो मैं एक दुकान में उनको लेके गया, काफ़ी सारी दुकान है, बराबर, और उस दुकान में हमने प्राइस पूछा, किसी ने कहा 6,000, 8,000, 9,000, बराबर, डिसाइड नहीं हो पाया, वापस आ गए। उसके बाद में जब हमने बातचीत की पड़ोसियों के साथ, तो किसी ने कहा अरे मैं ये दुकान में किसी को जानता हूँ, ओके, आप एक काम कीजिए, इस दुकान में जाइए, ओके, और वहाँ से कॉल कर लीजिए, जो चीज़ आपको 8,000 में होती है मैं 1,000 कम करा दूंगा। तो मैं बोला यार अच्छी बात है, थोड़ा सस्ते में मिल गया। पहचान, रिश्तेदारी, यहाँ पर भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको बोलूँगा मार्केट का भाव नहीं देता आपको स्पेशल प्राइस, कम वाला भाव। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स खरीदने का ऑफर दिया जाता है, उसको कहा जाता है राइट शेयर्स। कुछ कानूनी दावपेच आपको याद रखने हैं। अच्छा, क्या याद रखना है? कानून जो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा गया है, देखिए भाई,
राइट शेयर्स are to be sold to the existing shareholders at a price which is lesser than the market price. पहला, a company has to send a letter of offer to the existing shareholders. सबको letter of offer देना पड़ेगा. Okay? The letter of offer shall mention, उस letter के अंदर लिखा होगा क्या? The number of shares offered, हम आपको कितना shares दे सकते हैं. The period of offer, कब से कब तक. ऐसा नहीं है कि आपको जब चाहिए ले लो, अरे नहीं तुमको नहीं चाहिए दूसरे किसी को दे दूंगा, तो एक पीरियड है भैया. ओके, जो 15 दिनों से कम 30 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर, क्योंकि एक टाइम होता है ना भाई, हमको भी तो पैसे चाहिए. द राइट टू रिनाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है राइट टू रिनाउंस? कि अगर मैं मिस्टर ए को बोल रहा हूं, मिस्टर ए 5000 शेयर में आपको दे सकता हूं, बट मिस्टर ए बोलेगा नहीं यार पैसे नहीं अभी, उसका हक है वो खरीदने का, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने हक को रिनाउंस कर सकता है, त्याग सकता है. मैं ऐसे वर्ड यूज कर सकता हूं, त्याग दिया. बोलता है नहीं एक काम करो, मेरे को नहीं, मेरा एक रिश्तेदार है, ओके, उनको आप बेच सकते हो. तो आई रिपीट, इसको कहते हैं रिनाउंस. तो मुझे, आई रिपीट, द राइट टू रिनाउंस, दैट इज द शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ अदर पर्सन. आपको नहीं चाहिए तो ना लो. आपके मे बी, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे को पास वो लेटर आया है, आपके लिए 5000 शेयर्स रखे हैं, बट मैं किसी को बोल सकता हूँ देखा मेरे पास ऑफर है, वो मैं ऑफर तुझको दे सकता हूँ, मुझको थोड़ा कमीशन दे बीच में. होता है, क्यों नहीं होता है. हाँ, तो मैं, मेरा जो राइट है, हक, वो मैं त्याग दे सकता हूँ दूसरे किसी के लिए. हाँ, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंट, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से, स्पीड पोस्ट से, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मोड बेस्ट है, ईमेल भेज दिया, व्हाट्सएप कर लिया, ओके, जल्दी पहुंच जाता है. इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट्स इशू, मतलब शेयर होल्डर को लेटर भेजा ईमेल भेजा, हाँ ना कुछ नहीं बोलता, तो भैया हमको ऐसा लगेगा कि उनको नहीं चाहिए. 15 दिन से कम नहीं, 30 दिन से ज़्यादा नहीं, उसके बाद में उनकी तरफ से हाँ ना नहीं आया, नहीं मांगता है, क्या करूं मैं थोड़ी रुक सकता हूं आपके लिए. द कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ इशू. अगर कंपनी को 100 शेयर्स बेचने हैं, 90% उनको बेचने ही पड़ेगी, वरना पूरा 100 शेयर्स का इशू कैंसिल हो जाएगा. ये कंपनीज के लिए रूल है, मिनिमम इशू. इतना तो तुमको शेयर होल्डर ढूंढना ही पड़ेगा, अगर नहीं ढूंढे तो पूरा इशू खारिज किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा. दीज वर द रूल्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर इशूइंग राइट शेयर्स. बोनस शेयर्स क्या होता है? देखो, राइट शेयर्स फ्री के नहीं होते. आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रहे हो पैसा आपको देना पड़ेगा, बट मैं दूसरों को नहीं बेच रहा, पहले आपके पास आया हूं. बोनस शेयर्स उसका बिल्कुल उल्टा है. बोनस शेयर्स का मतलब होता है फ्री के शेयर्स. बड़ी बात है. फ्री का मतलब क्या? आप रखो शेयर, आप मेरे साथ थे, खुशी में, गम में, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, आप रखो शेयर्स फ्री के. तो देखो भाई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक रेशो में फ्री का शेयर्स मिलता है. व्हाट डज द रेशो मीन? कंपनी डिक्लेयर करती है, घोषित करती है, अगर आपके पास 10 शेयर है, हम आपको 1 शेयर फ्री का देंगे. कोई कहेगा मेरे पास तो 30 शेयर है, तो मैं बोलेगा अच्छा 10 शेयर का 1, उसके बाद का 10 का 2 और उसके बाद का 10 का 3, हम आपको 3 शेयर फ्री का देते हैं. आप रखो, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते. अरे फ्री का है, क्यों रिफ्यूज करना है, रखो. और आप चाहो तो जाके बेच दो, आपको पैसे मिलेंगे. तो आई रिपीट माई सेल्फ, राइट शेयर्स में आपको पहले हक मिलता है खरीदने का, बट आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं, बट थोड़ा सस्ते में मिलता है, मार्केट से थोड़ा सस्ते भाव में. फायदा है. बोनस शेयर्स में तो पूरा फायदा है. ऐसे कंपनीज जिनके पास काफी धन जमा हुआ है रिजर्व्स के अंदर, तो उस रिजर्व्स को वो यूज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पैसा कुछ ज्यादा ही जमा हो चुका है, उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए. अगर किसी भी लेक में
रिजर्वॉयर में जहाँ पर पानी है और पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, तो आप कुछ तो हिस्सा यूज़ करोगे, वरना वो ओवरफ्लो हो जाएगा और उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो कंपनीज बोलते हैं यार बहुत पैसा जमा हो गया हमारे पास, इतना पैसे का क्या करें, थोड़ा निकालते हैं और अपने पब्लिक को फ्री का शेयर्स देते हैं। और पैसा उनसे नहीं लेते, अपनी जेब में तो पैसा पड़ा था, वही से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेंगे। तो जब मैं एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री के शेयर्स दिए, तुम 4 रखो, तुम 10 रखो, तुम 15 रखो, पैसा मत दो, पैसा हमारे पास है, रिजर्व्स में है, तो इसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स को या जमे हुए प्रॉफिट को, जमा किया गया प्रॉफिट को जब शेयर्स में तब्दील या कन्वर्ट किया जाता है फ्री शेयर्स देकर, ओके, फुल्ली पेड फ्री शेयर्स देकर, ओके, जहां पे शेयर होल्डर से 1 पैसा की भी उम्मीद की नहीं जाती है, उसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या तो प्रॉफिट्स। ओके, इसके भी कुछ नियम कानून है जिसका पालन आपको करना है। कौन से रिजर्व से ये फ्री शेयर्स दे सकते हैं? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर करके एक होता है जिसका फुल फॉर्म है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ऐसे रिजर्व्स जो फ्री है, जिस पे किसी का काबू नहीं है, ओके, ये कंपनी यूज कर सकती है। प्लीज याद रखिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए, कंपनी के पास 101 रिजर्व होते हैं, रिजर्व 1, रिजर्व 2, रिजर्व 3, रिजर्व 4, ओके, पॉकेट होते हैं। बट कुछ पॉकेट्स पे, रिजर्व्स पे ताला होता है, ताला, तो वो खुला नहीं है, वो फ्री नहीं है, वो लॉक्ड है, लॉक्ड, उसको यूज नहीं कर सकते, बराबर। हाँ, तो जो फ्री है, अच्छा मतलब जिप है, खोल दो निकाल लो, जिप है खोल लो निकालो, ताला ही नहीं है, वो फ्री है। फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, इसमें जो पैसा है आप बिंदास यूज कर लो बोनस का पैसा अरेंज करने के लिए। हाँ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जो रिजर्व पैदा होता है वो आप यूज नहीं कर सकते। मतलब कंपनीज कभी कभी क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, हमारे पास जमीन था जो था 50 करोड़ का, आज वो 60 करोड़ का हो चुका है, पहले 50 अभी 60, तो कंपनी बोलती है अरे कीमत बढ़ गया, 10 करोड़ से बढ़ गया। बट क्या आपने वो 10 करोड़ कमाया? नहीं, वो तो मैं सोच रहा हूं। इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। ख्याली पुलाव, दिमाग में आपने कमाया, हकीकत में नहीं। तो ये जो दिमाग में कमाया है ना 10 करोड़, इससे आप बोनस नहीं दे सकते। आई रिपीट माई सेल्फ, ओके, किसी को खाना देना है तो हकीकत का खाना देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हवा खा, नहीं। तो फ्री रिजर्व्स में रियल पैसा होता है, उससे आप बोनस दे सकते हो। जो रिवैल्यूएशन की वजह से रिजर्व पैदा होता है वो हकीकत का नहीं होता, वो तो हवे में होता है, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। कंपनी को हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती नहीं हम डिविडेंड नहीं देते, हम बोनस शेयर्स देंगे। देखो, बोनस शेयर्स जब कंपनी देती है ना तो अच्छा इंप्रेशन गिरता है शेयर होल्डर्स पर, अरे देख मेरे कंपनी ने मेरे को ना फ्री का शेयर्स दिया, अरे तेरे को डिविडेंड ही दिया नहीं, बस वही पैसा तेरे को उन लोगों ने किस में चिपका दिया, फ्री शेयर्स में। तो कायदा है आपको पहले डिविडेंड देना है, और अगर दिया और उसके बाद पैसा बच गया आप शेयर्स बोनस का दे सकते हो। वंस द अनाउंसमेंट फॉर बोनस शेयर्स इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट कैन नॉट बी विथड्रॉन। आपने एक बार, पॉलिटिकल नेता ले रहते हैं ना, वोटिंग के पहले, इलेक्शन के पहले, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, अरे सिर्फ घोषणा कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, पूरा तो नहीं करेगा। ऐसा बोनस शेयर्स में नहीं होता। अगर आपने अनाउंस किया बोनस दिया जाएगा, देना पड़ेगा, वरना चुप बैठ, अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बोनस शेयर्स ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, बराबर है 10 रुपए का शेयर पूरा बोनस दिया जाता है, शेयर होल्डर से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस। देखो राइट शेयर्स जो होते हैं ना, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये त्याग देता हूँ, ये हक को त्याग देता हूँ। बोनस शेयर्स तो फ्री के मिलते हैं, आपको क्यों त्याग देना है, ले लो, चुपचाप बैठ जाओ, चाहिए तो बेच लेना। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो
राइट शेयर्स होते हैं ना, उसमें से 90% शेयर्स बिक जानी चाहिए। बोनस शेयर्स तो फ्री के हैं, कोई भी मना नहीं करने वाला, सभी लोग लेने वाले हैं। यही चीज़ें हम राइट और बोनस शेयर्स के डिस्टिंक्शन बिटवीन में सीख सकते हैं। पहला मीनिंग क्या है राइट शेयर्स? जब अपने ही लोगों को शेयर्स खरीदने का मौका दिया जाता है उसको राइट शेयर्स कहते हैं। बट जब अपने ही लोगों को फ्री के शेयर्स दिए जाते हैं तो उसको बोनस शेयर्स कहते हैं। पेमेंट, राइट शेयर्स में पूरा पैसा देना पड़ता है, थोड़ा सस्ता बट पूरा पैसा, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ये बोनस शेयर्स फ्री के रहते हैं, एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टली पेड, फुल्ली पेड, देखियो बोनस शेयर्स जो होता है, सॉरी राइट शेयर्स, इसका आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। बोनस शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड रहते हैं, आपको शेयर होल्डर को 1 रुपया देने की, 1 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। राइट शेयर्स में 90% शेयर्स बिक जानी चाहिए, बोनस शेयर्स में ऐसा कोई 90% नहीं है। जितने शेयर्स है वो फ्री के ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स को मिल जाते, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू रिनाउंस, त्याग देना, आप राइट शेयर्स में कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका थोड़ा फाइनेंशियल परिस्थिति खराब है, तो आप बोलोगे नहीं भैया मेरे को ये शेयर्स नहीं चाहिए, आप दूसरे किसी को दे सकते हो। बोनस शेयर्स में ऐसा कोई राइट है ही नहीं। चौथा, सिक्स्थ वन, पर्पस ऑफ इशू, कि बोनस शेयर्स कब दिया जाता है। देखो भाई, अगर कंपनी को पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, तो राइट शेयर्स दिया जा सकता है, पैसे मिलते हैं ना। हाँ, बोनस शेयर्स जब कंपनी के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, पैसे चाहिए नहीं, जो पैसे है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें से उनको थोड़ा यूज़ करना है, वो क्या करते हैं, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं बाय गिविंग व्हाट, बोनस शेयर्स। वेल, ये थे 6 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट, राइट एंड बोनस शेयर्स। आई एम होपिंग कि ये आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किस तरह शेयर्स बेचा जाता है ये क्लैरिफाई या तो ये क्लियर करके दे देता है। अब तक हमारे आज के और पिछले लेक्चर में 2 चीज़ें हमने पढ़ी है। अगर जनता को, दुनिया में किसी भी जनता को शेयर्स बेचने, आप आईपीओ या तो एफपीओ के द्वारा शेयर्स बेच सकते हो। अगर अपने ही शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचना है तो आप या तो राइट शेयर्स दे सकते हो या तो बोनस शेयर्स दे सकते हो। आने वाले 2 लेक्चर्स में जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है उसका इस्तेमाल या तो उसके एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा, जिसके अंदर एक है आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो और उसी लेक्चर में प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। वो आने वाले लेक्चर्स में हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये राइट शेयर्स क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होता है समझ में आ चुका है। अगर आ गया है और एक्सप्लेनेशन जच भी गया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपके लाइक करने से हमारे चैनल को, हमें इनकरेजमेंट तो मिलता ही है, चैनल को थोड़ा धक्का भी मिल जाता है सही डायरेक्शन में। अगर आप हमारे पुराने मित्र हो कृपया करके लिंक को शेयर करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब को आप करते जाए और बेल आइकन को दबा दें ताकि यूट्यूब के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। जब तक दोबारा ना मिले अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन बड़ा सुंदर जाए, ऊपर वाले की आशीष आपके ऊपर हमेशा और हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।